नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेईई एंड नीट। दिस इज द 23rd डे ऑफ जेईई मेंस रिवीजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लुईस ऑक्टेट रूल एंड लुईस स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, valence bond theory, modification of valence bond theory, that is a concept of hybridization, types of hybridization, and some questions in JEE mains. So when we are discussing about a covalent coordinate bond, or it is also known as dative bond, a covalent coordinate bond is formed by sharing of electrons between two atoms, but the shared electrons are donated by only one atom, right? Like here, when we are discussing about NH4 ion, NH4 ion is formed by NH3 and H plus ion. When there is a lone pair of electrons on the nitrogen of ammonia molecule, it will provide these electrons for sharing between H plus ion and nitrogen atom. Then there is a formation of covalent coordinate bond, and this is denoted by this arrow. So here ammonia is acting like a Lewis base and H plus is acting like a Lewis acid. Same way, when we are saying that there is a bond formation between ammonia and BF3, BF3 boron is electron deficient and nitrogen has lone pair of electrons. So there is formation of covalent coordinate bond. So ammonia is Lewis base and BF3 is a Lewis acid, and this compound is known as Lewis acid base adduct. So what is the condition for formation of a covalent coordinate bond? The first point is the donor atom has complete octet with at least one lone pair of electron. The second point is the acceptor atom has incomplete octet with the vacant orbitals in outermost shell. So these are usual the two conditions, but it is the second condition we are saying that incomplete octet, it is not always valid, but most of the time this second point is valid. So the molecular ion containing donor atom is called Lewis base, and the molecular ion containing acceptor are called Lewis acid. The product formed is called Lewis acid base adduct. Like BF3 is Lewis acid because it has 6 electrons in outermost orbit. So it is electron deficient. It can accept, boron atom can accept a lone pair of electrons in its vacant p orbital. So fluorine is known as Lewis base because it has 8 electrons and it can donate lone pair of electrons, and there is a formation of BF4 minus. Same way when we are discussing formation of H3O plus, here H2O is acting like a Lewis base. This oxygen atom has 2 lone pair of electrons and this H plus ions has no electrons, so it can accept a lone pair of electrons in 1s orbital, right? So there is a donation of, or there is a sharing of electron from oxygen atom towards this H plus ion. Same way when we are discussing here SiF4, here we can see that SiF4 silicon has 8 electrons in the outermost orbit. So its octet is complete, but still it has vacant orbital in third orbit. 3D orbitals are vacant, so it can accept electron pairs. So here SiF4 is acting like a Lewis acid and F minus is acting like a Lewis base, and it can form Lewis acid base adduct SiF6 2 minus. So this silicon is accepting 2 lone pair of electrons in its vacant d orbital. It is not necessary that Lewis acid has always incomplete octet. Like here we are discussing SiF4, where the silicon has 8 electrons in its outermost orbit. Still it is acting like an acid. Same way we can discuss about carbon dioxide. Carbon dioxide में भी carbon का octet complete है, but it can act as a Lewis acid. So how it is going to act like an Lewis acid, we are going to discuss. So CO2 plus OH minus will combine to form HCO3 minus. This is also Lewis acid base reaction. Same way sulfur dioxide and OH minus can also, here also sulfur के पास outermost में 6 electrons, and here when it is forming sulfur dioxide, we can write the structure. This is the actual structure of sulfur dioxide. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सल्फर डाइऑक्साइड के आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ 4 ये और 2 ये, 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बट फिर भी इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है
Because of that, it can accept lone pair of electrons and it can react to form HSO3 minus. So we'll discuss the mechanism here. SO2 and SO3, same way we can say that SO3 के अंदर, this is the structure, actual structure of SO3. तो इसके outer most में कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के outer most में 4, 8 और 12 इलेक्ट्रॉन है. There are 12 electrons in the outermost orbit of sulfur, right? So again it is acting like a Lewis acid. So the condition that Lewis acid has incomplete octet is not necessarily true. So here when we are discussing about the bond formation, when SO2 is going to react with OH minus sulfur dioxide gas dissolved in basic medium, तो क्या है कि सल्फर के पास आउटर मोस्ट में अभी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है. सो दिस lone pair from oxygen is donated to it and there is a formation of covalent coordinate bond. तो ये इस तरह का एक reaction intermediate form हो रहा है where one covalent coordinate bond is formed between this oxygen atom and sulfur atom. And now when this is happening, ये जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड. सो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. एंड नाउ वी कैन से दैट अगर मैं इस कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करूं, दिस इज कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर मैं इसको नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करूं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन एटम के हैं, नाउ क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन मैं इस सल्फर को दे दूंगा तो सल्फर पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है. व्हेन वन पॉजिटिव विल कम दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. दिस सल्फर हैज वन पॉजिटिव, अगर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सल्फाइट आयन फॉर्म्ड, राइट. तो SO2 और OH माइनस की रिएक्शन की वजह से सल्फाइट आयन फॉर्म हो रहा है. दिस इज सल्फाइट आयन फॉर्मिंग एंड दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन. सेम वे हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के केस में व्हेन दिस लोन पेयर इज डोनेटेड टू दिस कार्बन एटम साइमल्टेनियसली देयर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये लोन पेयर तभी लेगा जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा. ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है एंड देन इट विल एक्सेप्ट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. And because of that we can again say here that ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने से इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर मैं इसको नॉर्मल बॉन्ड से रिप्लेस करूं तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन HCO3 minus ion. So again here it is Lewis acid based type of reaction. So Lewis octet rule and Lewis dot structure. According to this rule, an atom attached to another atom in order to complete its octet except hydrogen atom. Hydrogen atom combined to obtain 2 electrons in its orbit. Hydrogen atom wants to complete its duplet. There are many chemical species which do not follow Lewis octet rule. Examples are given below. तो यहाँ पे कुछ examples हैं like BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. BF2 में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. BeCl2 इट हैज 4 electrons in outermost of boron. Same way, right? Till here they are electron deficient. 1, 2, 3, 4 are electron deficient. Now the fifth example, PCl5 outermost में 10 electrons. So extension of octet. Sulfur dioxide, we have drawn the structure of sulfur dioxide. सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 4 बॉन्ड बना रखा है, तो आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड में आउटर मोस्ट में यू कैन काउंट दैट देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑफ सल्फर. 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 इसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, तो देयर इज शेयरिंग ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये एक्सटेंशन हो गया. सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन इफ यू ड्रॉ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड का. sulfur double bond oxygen, sulfur double bond oxygen. So again the sulfur is forming 6 bond, so outermost में 12 electrons. So this is also extension of octet. In case of SF4 outermost में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 इसमें कोवलेंट बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड बने, तो outermost में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इन SF6 there are 6 कोवलेंट बॉन्ड between sulfur and fluorine. 6 इलेक्ट्रॉन इसके पहले थे और 6 की शेयरिंग हो रही है, so there are 12 electrons in outermost, right? Same way we can write these examples, right? These all examples are there in NCERT and they are not following Lewis octet rule.
So rules to draw the Lewis structure. What are the rules to draw the Lewis structure? The first point is, first we determine the central atom, और usually central atom कौन होता है? Least electronegative atom in the molecule except hydrogen, because hydrogen cannot be the central atom. Hydrogen केवल एक single bond बनाएगा, it cannot be a central atom. The second point is, an atom attached with more than one atom in a molecule or ion is the central atom. कई बार molecules ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा central atom होते हैं. Now if we want to calculate Lewis octet structure में अगर हमें number of bond pairs calculate करना, तो बड़ा simple formula है. Number of bond pairs is equal to n minus a divided by 2. n है total number of valence electrons in a molecule or ion after bond formation, क्योंकि सबका उद्देश्य है each atom wants to complete its octet. तो अगर जैसे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, राइट, तो अगर मैं ये कहता हूं कि कार्बन एटम है या फ्लोरीन एटम है, ठीक है, कितने फ्लोरीन और कार्बन एटम है बॉन्ड बनाने के बाद, अगर ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और ए जो है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल और आयन बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन. तो अभी एक एग्जांपल से देखते हैं. बॉन्ड पेयर निकालना बहुत आसान है. जैसे ओजोन मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि ओजोन एन की वैल्यू जब ये बॉन्ड बना लेगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा तो हर ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. There are 8 electrons in each oxygen atom and there are 3 oxygen atoms. So the value of n after bond formation, the value of n is equal to 8 into 3, that is 24. और ऑक्सीजन ने जब फ्री एटम के फॉर्म में था, जब इसने बॉन्ड नहीं बनाया था, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे. 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, so 6 into 3 is 18. So if I calculate what is the number of bond pairs, that is n is 24, a is 18 divided by 2, 6 by 2 is equal to 3. तो हमें पता है कि ओजोन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर्स है. नाउ वी कैन ड्रॉ एक सेंट्रल ऑक्सीजन एटम हो गया और दूसरा ऑक्सीजन एटम इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और तीसरा एक बॉन्ड पेयर चाहिए. तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. नाउ आई कैन नॉट मेक अनदर डबल बॉन्ड, अदरवाइज लुईस ऑक्टेट रूल विल फेल. तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा. इस ऑक्सीजन एटम के पास 6, इसको 2 चाहिए, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा. सेम वे वी कैन फाइंड आउट फॉर HNO3. HNO3 के लिए अगर मुझे निकालना है तो n की वैल्यू आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाइड्रोजन का एक एटम है. नाइट्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन के पास 8 होने चाहिए. ऑक्सीजन के 3 है, तो 8 वाले 4 है. So 4 into 8 plus 2, right? So that is equal to 34. The value of n is 34. If I calculate what is the value of a bond, बनाने से पहले हाइड्रोजन के पास 1 थे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, 3 ऑक्सीजन एटम है, आउटर मोस्ट में 6 है. So 18 plus 5 is 23, 23 plus 1 is 24. So if I calculate number of bond pairs, that is 34 minus 24 divided by 2 is equal to 5, right? So this is the number of bond pairs in HNO3. Same way I can calculate that what is अभी हम HNO3 का अगर structure draw करें कि what is the structure of HNO3. So this is the nitrogen atom. We are going to study the rule कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम होंगे तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ दें. पहला हमारा कोशिश यही होगी कि if हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयर इन अ मॉलिक्यूल, विल ट्राई टू कंबाइन देम. ये नाइट्रोजन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम. नाउ 2 ऑक्सीजन एटम्स इज लेफ्ट. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं. अगर वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. नाउ दिस नाइट्रोजन हैज कंप्लीट ऑक्टेट बट 1 ऑक्सीजन एटम इज लेफ्ट. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन draw a covalent coordinate bond. By doing that, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 plus 2 8, और ये नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड. सो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर फॉर HNO3 मॉलिक्यूल. सेम वे वी कैन राइट फॉर H3O+ की व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. तो बॉन्ड बनाने के बाद हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. 3 हाइड्रोजन एटम है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दिस मॉलिक्यूल हैज 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और अगर हम एक ही बात करें बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है जिसके पास
1 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तरीका कहने का ये भी हो सकता है, या मैं ये कहूं कि एक हाइड्रोजन H+ आयन है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 2 हाइड्रोजन एटम है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। या मैं ये कहता हूं कि हर हाइड्रोजन एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो उसको हमने माइनस कर दिया। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 8। फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3। P4 मॉलिक्यूल में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 4 एटम्स हैं फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में, इसके 8 होने चाहिए। अगर ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो 8 इंटू 4 इज 32। और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बॉन्ड बनाने से पहले फ्री फॉस्फोरस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। सो द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 32 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6। और हमें ये पता है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। ये व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, इसमें आप बॉन्ड पेयर काउंट कर सकते हो कि दैट इज इक्वल टू 6। सेम वे हम ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो 2 आएंगे, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। एसिड मॉलिक्यूल्स में भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद 8 एटम्स के पास वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सो दैट इज 64। बॉन्ड बनाने से पहले हर एक के पास 6 थे तो 48। सो 64 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कमिंग इज 8। सो दिस इज क्राउन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। सो टुडे वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इन लुईस structure. Now whenever hydrogen and oxygen, there are certain rules to write, right? तो हमने इसमें पहले ये 2-3 रूल्स पढ़े। फर्स्ट वी डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, देन, और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, देन वी हैव discussed that the atom attached with more than one is central atom. Calculate the number of bond pairs. Now the fourth point is, whenever hydrogen and oxygen atoms are present in a molecule or ion, we try to combine them in priority. ऐसा है कि जब भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। इसमें 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। जनरली जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है हम उसको आपस में कंबाइन कर देते हैं, except few exceptions like in phosphorus acid this hydrogen is attached with phosphorus atom, and in hypophosphorus acid there are 2 hydrogen atoms attached with phosphorus. We know that the basicity of this phosphorus acid की basicity 2 है, right? From there also we can find this logic, and here the basicity of hypophosphorus acid is equal to 1. बेसिसिटी का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल कितने H+ दे सकता है, तो जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच है केवल वही आयोनाइज होगा। So on the basis of that, otherwise whenever hydrogen and oxygen is there, we first try to combine them. Fifth point is, if more than one oxygen atoms are present in a molecule, we avoid them to combine with each other. जनरली हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन अवॉइड करते हैं, except few cases like in oxygen there is no other, so we have to combine oxygen and oxygen. In ozone also same type of thing is there. In hydrogen peroxide there is peroxide bond. In per sulfuric acid है ये peroxy sulfuric acid, so here also peroxide bond is there, so oxygen oxygen bond is there. पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका कुछ और भी नाम है, इसको हम कहते हैं शायद कैरोज एसिड। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, दैट as far as possible the molecule should be symmetric. After drawing the structure we must verify Lewis octet rule, count the number of bond pairs. Each atom should follow Lewis octet rule except hydrogen, it should follow duplet rule. If positive charge is there, it should be on least electronegative atom, and if negative charge is there, it should be on most electronegative atom. तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज इफ वी लर्न हाउ टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, राइट, it will help in chemical bonding, in p block, right, in whole inorganic chemistry it is going to help. So here few examples are there. I am going to discuss only 2-3 example. तो पहला हमें सीखना है इसमें, जो अभी हमने रूल्स लिखे हैं उसको फॉलो करके, लाइक HNO2 मॉलिक्यूल है, तो फर्स्ट आवर वर्क इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कैलकुलेट करने के लिए n की वैल्यू, जब ये पूरे
एटम से एक दूसरे से जोड़ के ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करेगा तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, 3 एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इफ वी सिंप्लीफाई 24 + 2 = 26। और बॉन्ड बनाने से पहले अगर ये फ्री एटम्स थे तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इफ वी सिंप्लीफाई हियर 12 + 6 is 18. So number of bond pairs is 26 minus 18 divided by 2. So if you calculate, it is coming 6 + 2 8 4. And central atom is the least electronegative atom, that is equal to nitrogen. तो अभी अगर मैं रूल्स के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये सेंट्रल एटम हो गया, और जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो उनको आपस में कंबाइन कर देना चाहिए, तो ये मैंने कंबाइन कर दिया। ये ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट में 6 है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसको सेंट्रल एटम से कनेक्ट कर दिया। और नाउ वी हैव 1 ऑक्सीजन एटम, राइट। और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दिस नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो 4 बॉन्ड हो गए। एंड दिस whole all the 4 atoms, this is following duplet, this is following octet, this is also following octet, and this is also following octet। तो अभी मैं इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शो कर दूं तो दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया HNO2 का। सेम वे इफ आई फाइंड आउट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N इन HNO3, HNO3 में हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 1। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल 4 एटम है और इनके आउटर मोस्ट में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो 8 × 4 is 32, 32 + 2 is 34। बॉन्ड बनाने से पहले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड इन ऑक्सीजन देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट। सो इफ आई कैलकुलेट 18 + 6 is 24। So number of bond pairs will be 5. 34 minus 24 is 10 divided by 2 is 5. Central atom is least electronegative atom, that is nitrogen. So again, if I try to draw, नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर देते हैं। ये ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है एक और ऑक्सीजन एटम से, इसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दें तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ देयर इज 1 ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हियर, so what we can do, we can connect this oxygen atom through nitrogen atom by covalent coordinate bond। तो अभी all the atoms are following Lewis octet rule and hydrogen is following duplet rule। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। सेम वे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के लिए ड्रॉ करते हैं तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 × 2, ऑक्सीजन का 1 एटम है, आउटर मोस्ट में बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो द वैल्यू ऑफ N is 12। द वैल्यू ऑफ A इफ आई कैलकुलेट, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं लेकिन आउटर मोस्ट में बॉन्ड बनाने से पहले 1 थे और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो इफ आई कैलकुलेट दिस दैट इज इक्वल टू 8। सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2 एंड सेंट्रल एटम हाइड्रोजन हो नहीं सकता तो ऑक्सीजन ही होगा, राइट। सो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन एटम है और अभी हमने कहा कि जब हम यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं शेप नहीं बना रहे, राइट। लुईस स्ट्रक्चर से हमें कोई शेप का पता नहीं चलता तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। Same way you can draw other structures. So what are the exceptions of octet rule? There are many chemical species whose octet is incomplete like LiCl. We know that LiCl is covalent, right? तो अभी LiCl में लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 है, एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, लिथियम क्लोराइड सिंगल बॉन्ड बनेगा, राइट। हियर लिथियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लाइक हाइड्रोजन एटम, एंड क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो लिथियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। सेम वे व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट BeH2, इन केस ऑफ BeH2 बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हाइड्रोजन एटम से सिंगल बॉन्ड से कंबाइन होंगे तो अभी भी बेरिलियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। आउटर मोस्ट में इसके कितने हो गए, 2 2 4 2 6,
6 electrons are there. Beryllium के पास lone pair नहीं होगा after bonding, because when we are writing the electronic configuration of beryllium, it is 1s2 and 2s2. ये है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो ये ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा. बट हियर इन लुईस वी आर नॉट डिस्कसिंग दोस थिंग. वी आर सेइंग दैट बेरिलियम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा. तो बेरिलियम आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड it has 4 electrons, so it is electron deficient. Same way for BCl3, we can say that after forming 3 कोवलेंट बॉन्ड्स विद दीज क्लोरीन एटम्स, बोरोन के पास 3 थे और 3 इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिए क्लोरीन से, तो हर क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बट बोरोन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. So these are incomplete octet, right? So there are many molecules which do not follow octet rule. कई molecules हैं जिनमें odd electrons है, like NO 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं. So when valence electron को हम शो करें यहाँ पे, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. If you count, there are 4 electrons here, 4 + 2 6 and 1 7. तो नाइट्रोजन is not following Lewis octet rule. ऑक्सीजन फॉलो कर रहा है, नाइट्रोजन नहीं कर रहा है. सेम वे NO2 में अगर आप देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2. So this nitrogen atom, if you count the number of electrons, 4 here, 2 यहाँ पे, 6 and 1 7. नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. The expanded octet, many elements of third period and beyond do not follow Lewis octet rule. अभी हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. जैसे PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर के आउटर मोस्ट में, H2SO4 में भी सल्फर के आउटर मोस्ट में 12 इलेक्ट्रॉन्स है. So there are many compounds which do not follow this Lewis octet rule. So the second period element like carbon, nitrogen, oxygen and fluorine should always follow this Lewis octet rule. अगर इनका कोई भी कंपाउंड है, right, provided that like कार्बिन्स वगैरह को छोड़ के, जनरली वी आर सेइंग दैट कि कार्बन जैसे CH4 है और कोई और हाइड्रोकार्बन है कार्बन का जो कार्बिन नहीं है एक्सेप्ट कार्बिन, राइट. सो इन दैट कार्बन विल मेक 4 bonds and it will follow that octet rule. नाइट्रोजन में भी इसी तरह से नाइट्रोजन, सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन will follow. ये second period के elements है, most of their compounds will follow Lewis octet rule. The second period element boron and beryllium often have less electron than 8 in their outermost after bonding. Like अभी हमने डिस्कस किया कि BCl3 है या BF3 है, बोरोन के कंपाउंड्स है BCl3 and BF3, बेरिलियम के BeH2 है या BeCl2 है. So after forming the bond in these compounds, this boron has 6 electrons, this beryllium has 4 electrons in outermost orbit. तो ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, जैसे कि BF3 में बोरोन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन BF4- में बोरोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ऐसा नहीं है कि बोरोन हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड फॉर्म करता है, BF4 में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. सेम वे BeH2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट BeOH4 इसका बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा इसमें. So the second point is the second period elements boron, beryllium often have fewer than 8 electrons around them in their compound, but not always. हमेशा नहीं होता ऐसा. But एक बात फिक्स है about this second period element. The second period element never exceed the octet rule since there are valence electrons, valence orbital 2s and 2p. तो 2s और 2p में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते, राइट. तो इसलिए सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे वो कभी भी एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे. मैक्सिमम 8 हो सकते हैं या 8 से कम हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट. The third period and beyond elements often satisfied octet rule but can exceed the octet rule by using their empty valence d orbital. तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो एक्सटेंशन ही करते हैं. कई बार वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और कई बार एक्सटेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल PCl3 में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए, राइट. सो देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ दिस फास्फोरस एटम. सो इट इज फॉलोइंग octet rule, but PCl5 के आउटर मोस्ट में 10 है, so it is not following octet rule. HCl2 में सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और इन्होंने 2 कोवलेंट सिंगल बॉन्ड बना लिए क्लोरीन से, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 8 है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है.
SF में 6+4 10 है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ICl में आयोडीन के पास 7 थे, एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये फॉलो कर रहा है। ICl3 में 7+3 is 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिस पॉइंट इज क्लियर दैट थर्ड पीरियड और बियॉन्ड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो, कुछ एलिमेंट कुछ कंपाउंड्स करते हैं और कुछ कंपाउंड्स नहीं करते हैं। When writing the Lewis structure of a molecule satisfying the octet rule for the atom first, if electrons remain after the octet rule have been satisfied, then place them on the element having available d orbitals। इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके डिस्कस करूं कि सल्फ्यूरिक एसिड है और जब हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस इज नॉट द लुईस स्ट्रक्चर, राइट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का मैं लुईस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सबसे पहले मुझे बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना चाहिए। फॉर सल्फ्यूरिक एसिड आई कैन राइट H2SO4, और इसमें अगर मैं n की बात करता हूं, n इज इक्वल टू 2 into 2, और ये सल्फर अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए। 5 एटम्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 44। सेम वे आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। बॉन्ड बनाने से पहले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 था, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 था। सो देयर आर 5 एटम्स who have 6 electrons in outermost valence shell, right? So if I calculate, this is 32, so from there I can calculate what is the bond pair. So the bond pair is equal to 44 minus 32, that is equal to 12 12 divided by 2 is equal to 6। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं कि ठीक है, सल्फर एटम जो हो गया वो सेंट्रल एटम हो गया, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं हो सकता सेंट्रल एटम। फिर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कर देना चाहिए, और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होना चाहिए, इसलिए हम दूसरी तरफ भी ऐसा कर देते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो गए। अब ये ऑक्सीजन एटम इधर कंबाइन हो जाएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इन दो ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर मुझे लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो मेरे पास अब 2 ऑक्सीजन एटम है। सो दीज 2 ऑक्सीजन एटम्स विल बी कंबाइंड विद दिस सल्फर एटम बाई कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि और इस सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अगर ये नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा तो एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है, दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर, बट द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस बिकॉज इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड इट विल फॉलो दिस। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, बट ये नहीं होता क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस स्ट्रक्चर, राइट। तो उसमें ये कहा गया है, ये जो लास्ट पॉइंट था उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो सल्फर को छोड़ के, क्योंकि ये 3D का है, दिस इज 3D एलिमेंट, राइट, तो बाकी सारे ये सेकेंड पीरियड का ये ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता, तो बाकी सबके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो कर दो। और फिर जैसे कि अगर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसके 2 बॉन्ड बन गए, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन गए, इसके 2 बॉन्ड बन गए, राइट, क्योंकि ये सल्फर एक्सीड कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसके डबल बॉन्ड बना रहा हूं मैं, राइट। तो यू कैन सी नाउ दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल द 6 आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, एंड इसके आउटर मोस्ट में भी कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट, ये ऑक्टेट का एक्सटेंशन है। सेम वे फॉर SF6 यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आप बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लो लुईस के लिए बॉन्ड पेयर। So when you are calculating the bond pair, of course here in case of SF6 फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता, तो 6 फ्लोरीन एटम है, तो आपने पहले ही इनका सिंगल सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, तो इसमें ही you can count that the number of electrons here in this sulfur is equal to 12. So fluorine is second period element, ये octet को extend नहीं कर सकता, तो 8 electrons 8 electrons 8 electrons, right? So by doing that we are finding that this sulfur has 12 electrons in its outermost ऑर्बिट। सेम वे जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन फ्लोरीन को तो 8 होने चाहिए, तो एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सो यू कैन काउंट दैट जिनॉन के पास अभी कितने हैं, 2 2 4 6 8 और 10, देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इन द आउटर मोस्ट, सो इट इज
extension of octet rule. So that is very simple. By this way you can find out that which of the following molecules, and you can draw the actual structure also. So demerits of Lewis octet rule cannot explain the nature of force operating between. केवल ये कहा जा रहा है कि एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है अपना और दूसरे एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है. बट व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई देयर इज अ बॉन्ड, इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय लुईस कॉन्सेप्ट, राइट. व्हाई डिफरेंट, अगर यही नहीं बता पा रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से है, सो दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश दैट अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और वाटर में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड इसलिए बना रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है और नाइट्रोजन भी इसलिए बना रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सो व्हाई द बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड is different from the bond energy of oxygen hydrogen bond. They are not able to explain. Why? They cannot explain the shape and geometry of molecules and ions. Like ammonia जो है, अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, तो अमोनिया जो है उसका पिरामिडल शेप क्यों है, व्हाई इट हैज पिरामिडल शेप. वाटर का जो है वो बेंट शेप क्यों है या वी शेप क्यों है. द शेप एंड ज्योमेट्री इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय लुईस स्ट्रक्चर. सो दीज आर द डीमेरिट्स. वैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, तब तो आपको ये डिफरेंस बताना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, राइट. समटाइम्स, मेनी टाइम्स इन प्लेस ऑफ ज्योमेट्री वी आर सेइंग शेप एंड वाइस वर्सा. जैसे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होता है, लेकिन ऑफनली वी आर रिप्लेसिंग देम. तो जब तक कोई डिफरेंस ना पूछे तब तक आपको ये जवाब नहीं देना है. जैसे हम कहते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब जब हम सेंट्रल एटम के चारों तरफ, एक एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को शो करते हैं, तो वो उसकी ज्योमेट्री होती है. जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड पेयर हो गए, तो दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. लेकिन अगर केवल हम बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड पेयर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करते हैं. So shape is related to only bond pair, but geometry is related to bond pair plus lone pair. But जब तक कोई डिफरेंस नहीं पूछे तब तक आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, because oftenly we are using shape in place of geometry and vice versa. ठीक है. Now we are going to discuss this H2SO4 molecule. हम covalent coordinate bond के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक्चुअल मॉलिक्यूल है. So we have drawn the structure of sulfuric acid. अभी थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है. अब मुझे इसमें when the covalent coordinate bond is directed from less elect, इसमें तो कोई covalent coordinate bond है नहीं, राइट. लेकिन यहाँ पे अगर हमने HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया है, this is the structure of HNO3, so there is covalent coordinate bond. And when the covalent coordinate bond is directed from less electronegative atom towards more electronegative atom, then on breaking of bond, the less electronegative atoms acquire 2 positive charge and the more electronegative atoms acquire 2 negative charge. Logic ये है कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम ये जो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम हेट्रोलिटिकली ब्रेक करते हैं. तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन एटम को है, लेकिन जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो कि नाइट्रोजन के, वो ऑक्सीजन ले जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ले जाएगा. तो इसी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहां से अगर ब्रेक करूं तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये ले जाएगा, यहां से भी ये ले जाएगा. तो ये नाइट्रोजन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है. ये वाला ऑक्सीजन यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, 2 तो इसके खुद के हैं, तो इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होगा तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ये वाला भी ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ही लेके जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन लेके जाएगा. तो इस ऑक्सीजन पे भी -2 है और ये हाइड्रोजन +1 में. सो हियर वी आर डिस्कसिंग कि अगर हम कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही शेयर इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, तो उस पे 2 नेगेटिव और इस पे 2 पॉजिटिव. दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर. सेम वे, when the covalent coordinate bond is directed from more electronegative atom to less electronegative atom, then on breaking the bond there is no development of charge. ये रटने वाली कोई बात नहीं है. This is very simple and logical. Like BF4 माइनस है, राइट.
तो BF3 और F माइनस जो है इसके बीच में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय दिस फ्लोरीन एटम टू बोरोन. तो अभी हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, ये इसी के पास रहेंगे, तो पहले से इस पे एक नेगेटिव है, नया कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे. और ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन थे नहीं, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, सो ऑन ब्रेकिंग दिस बॉन्ड देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज. सेम वे हियर H3O प्लस में आप देखो कि वाटर मॉलिक्यूल है और ये लोन पेयर ऑक्सीजन जो है वो H प्लस को प्रोवाइड कर रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज. ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, इसी के पास हैं, तो यहाँ इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, पहले से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज था, वो है. राइट, सो दैट इज द पॉइंट. फॉर्मल चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज है क्या? बहुत सिंपल है. एक एटम को हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनाने से पहले और बॉन्ड बनाने के बाद. सो व्हेन वी आर डिफाइनिंग द फॉर्मल चार्ज, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ फ्री एटम. जब उसने किसी से अटैच नहीं हुआ था तब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, और जब वो अटैच हो गया तो कुछ उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर के फॉर्म में और कुछ लोन पेयर के फॉर्म में है. तो वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड. ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स में क्योंकि दो एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो हम जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं वो, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग दैट एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक दूसरे एटम का है, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट वी आर राइटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. राइट, एंड अगर लोन पेयर है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी एटम के पास हैं, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2 बिकॉज लोन पेयर. राइट, और ये इसी एटम के लोन पेयर है, तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एटम. एंड बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन तो एक इस एटम का एक उस एटम का, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. सो दिस इज फॉर्मल चार्ज. व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मल चार्ज? अब जैसे अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो सल्फर डाइऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए SO2 है, पहले मैंने क्या किया, एन की वैल्यू कैलकुलेट करी. क्या मतलब, अगर ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, 3 एटम है, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24. और बॉन्ड बनाने से पहले ही सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, 3 एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो वी कैन फाइंड आउट दिस इज 18. So if I calculate what is the bond pair, 24 minus 18 is 6, 6 divided by 2 is 3, तो bond pair 3 हो गए. And now we are drawing the structure, ये structure होगा उसका, ये लुईस structure है सल्फर डाइऑक्साइड का. But the actual structure is this is the actual structure of sulfur dioxide, because सल्फर में वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, तो ये अपने ऑक्टेट का एक्सटेंशन कर सकता है. तो हमने क्या किया कि पहले सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये जो सल्फर है इसका एक्सटेंशन हो गया. अब नाउ वी कैन काउंट दैट देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, 4 here and 2 this, right? So 10 electrons in the outermost orbit of this sulfur. So कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, this is more stable or this is more stable, right? So with the help of formal charge we can find out that this structure is more stable. कैसे? Like if I calculate the formal charge on this sulfur atom, बॉन्ड बनाने से पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो 6 इज देयर. अभी बॉन्ड बनाने के बाद कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, सो दिस इज 3. और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं, तो 5. तो इसके सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, +1. सेम वे इफ आई एम कैलकुलेटिंग व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, बॉन्ड बनाने से पहले 6 थे, अभी 4 and 2 6, राइट? सो फॉर्मल चार्ज इज 0 हियर. In this, if I calculate formal charge, bond बनाने से पहले 6 थे, now you can calculate that 2 plus 4 6, और ये एक bond pair 7 electrons are there, so 6 minus 7 is -1. So this is the formal charge on different atoms, right? अगर ये structure होता तो इसका formal charge 0 आ रहा है, इसका formal charge 0 आ रहा है, इसका formal charge आप calculate करो, bond बनाने से पहले 6 थे, अभी bond pair 4 हैं और lone pair 1 है, तो 6 है, तो formal charge 0 है. तो अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो फॉर्मल चार्ज जो है वो सारे एटम्स पे 0 आ रहा है, देन दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, राइट? सो दैट्स व्हाई वी टेक दिस एज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सेम वे ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, सॉरी लुईस स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट, आई एम जस्ट टेलिंग दैट दिस ऑक्सीजन इज इन -1, दिस इज इन 0 0, यहाँ ये -1, ये सल्फर एटम +2 में है, जबकि आप
इसमें देखो तो सारे एटम्स का जो फॉर्मल चार्ज है वो जीरो है, सब पे जीरो फॉर्मल चार्ज है, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो इसलिए हम ये वाले स्ट्रक्चर को ना मान के इस वाले स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये अपने ऑक्टेट का एक्सटेंशन भी कर सकता है। तो अभी सल्फर के आउटर मोस्ट में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। What is the other application of formal charge? Let us discuss one question about this. Which of the three resonating forms of NCO has maximum contribution to resonance hybrid to cyanate ion, right? तो अगर cyanate ion है, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे ये 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अब इनमें हमने पढ़ा है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, राइट। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट। हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। तो अभी इन तीनों में सबसे नजदीक जो स्ट्रक्चर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर के, वो कौन सा है? वी कैन से दैट विच इज द बेस्ट स्ट्रक्चर अमंग दीज थ्री। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज वी कैन फाइंड आउट। जैसे इससे हमने हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया, तो नाइट्रोजन पे -2 आया, इस पे 0 आया और इस पे +1 आया। इस स्ट्रक्चर में इस नाइट्रोजन पे -1 है, इस कार्बन पे 0 और इस ऑक्सीजन पे 0 है, और इस वाले स्ट्रक्चर में 2 पे 0 है और 1 पे -1 है। इन सेकेंड और थर्ड को मैं कंपेयर करूं तो पॉइंट ये है कि किसी स्ट्रक्चर में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर थर्ड जो है सेकेंड से ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में 2 एटम्स पे 0 है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, बट दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। तो इसलिए थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। From the following canonical forms of carbonate, find the bond order of carbon oxygen bond. तो अभी यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 3 है, 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। मैं किसी एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। So what is the way to calculate the bond order of a particular bond in resonating structure? जैसे कार्बोनेट आयन के ये 3 canonical forms हैं। So if I want to calculate, what I will do, I will count the number of bonds between these two atoms in all these 3 structures. जैसे पहले वाले में 1 बॉन्ड है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 1 है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 हो गए। और कैनोनिकल फॉर्म्स कितनी है? 3 है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 atoms in all canonical forms divided by number of canonical forms. So from there we are getting that a bond order is equal to 4/3. Why we are discussing bond order? Because we know that bond order and bond length are inversely proportional. So we can compare the bond strength of carbon double bond oxygen, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन में कार्बन डाइऑक्साइड के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहां से उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और यहाँ कैलकुलेट करेंगे, एंड फ्रॉम देयर वी कैन डिसाइड दैट विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। सो ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सारे, जैसे अगर मैंने इसका निकाला इसके लिए निकालूंगा तो अभी इन तीनों स्ट्रक्चर में 2 और 1, सो 4 डिवाइडेड बाई 3। अगेन इसका भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। इस वाले के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1, 2, 3 and 4 सेम थिंग। सो फ्रॉम देयर आई कैन से ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्विवेलेंट ड्यू टू रेजोनेंस, राइट। कुछ ये एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है अबाउट रेजोनेंस, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हो और कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी आप रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करते हो, तो यू शुड नो दीज पॉइंट्स। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। हमने ये जो 3 स्ट्रक्चर बनाए ये रियली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। The molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in other canonical form. ऐसा कुछ नहीं होता कि मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। There is no such equilibrium between canonical forms as we have between tautomeric forms. तो ये फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है। जैसे कीटो इनॉल फॉर्म में there is an equilibrium, right? Fourth point, the molecule as such has a single structure which is the resonance hybrid of canonical form and which cannot as such be depicted by a single structure. इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो उस एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सकता। एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, राइट। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते इसके फॉर्म में, इसलिए हमने ये 3 फॉर्म्स को ड्रॉ किया है, राइट। सो दीज पॉइंट्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं ना। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहीं से मैंने लिखा है, ठीक है।
तो ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो, आपको ये पता होगा। तो अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में कोवलेंट बॉन्ड एंड लुईस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज को डिस्कस किया। अगर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करते तो ये वीडियो लंबा होता, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अगेन। So in the next video, we are going to discuss about valence shell electron pair repulsion theory, and then we are going to discuss about valence bond theory. Hope you like this video. Thank you.